dear students, I am Shahjahan. Today we will learn the method of elimination. In this method, for this we have considered or taken two equations. Here is 8x minus 3y equals to 13 and 3x plus 2y equals to 8. And the first step is to number those given equations as equation 1 and equation 2. To eliminate what is to be eliminated, first we shall have to decide. हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें y को एलिमिनेट करना है या x को करना है. जिस चीज को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स को हमें इक्वल करना पड़ेगा. We shall have to equalize the coefficients of the variable which is to be eliminated. Here just we want to eliminate y. For this, here the coefficient of, in first equation the coefficient of y is 3 and in second equation the coefficient of y is 2. And to make them equal we shall have to find the LCM of those two coefficients. Here we found it as 6. That is our responsibility here to make these as 6. Make the coefficients of y in both the equations as 6. For this, we need to multiply equation 1 to make it 6. We shall have to multiply the equation 1 by 2, and to make the coefficient of y in equation 2, we shall have to multiply this by 3. Just multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3, we get what we get? 2 8 ja 16x, 2 3 ja 6 minus 6y, 2 13 ja 26, and 3 3 ja 9x, 3 2 ja 6y, and 3 8 ja 24. Now third step is to check the sign. Check the sign of the two coefficients which is being equalized. यहाँ पे देखते हैं कि माइनस है और यहाँ पे प्लस है. अगर ये दोनों का साइन एक जैसा है, if they have like signs, we shall have to subtract, and if they have unlike signs, we shall have to add them. Here in first equation the coefficient of y has negative sign, and whereas in the second equation the coefficient of y has positive sign. That means इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो सिंपली हमारा 6y और 6y कैंसिल आउट हो जाएगा. फिर एडिशन के बाद 16 and 9 25x होगा, और इधर 26 and 24 becomes 50. दैट मीन्स हमारा वन वेरिएबल में एक इक्वेशन क्रिएट हुआ. यहां से हमें x फाइंड आउट करने के लिए दिस कोफिशिएंट of x, that is 25, will divide 50, so we will get x equals to 2, and this value of x equals to 2 shall have to be put down in any of the equation. ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हम सेलेक्ट करेंगे. हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 को सेलेक्ट किया है. यहाँ पे 3 into x, 3 into x का वैल्यू 2 यहां से रखा है, और प्लस 2y है इक्वल्स टू 8 है. 3 to the 6 बाई ट्रांसपोजिशन 8 minus 6 2 हो जाएगा, और ये 2y यहाँ पे है, दैट इज y equals to 2. दैट मीन्स वी गॉट द सॉल्यूशन ऑफ दोज टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एज x equals to 2 and y equals to 1. Okay. Now we have considered another type of equation. Here is the two given equations: 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x minus 2y minus 7 equals to 0. यहाँ पे हमारा प्लान है कि हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे. तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए हमें x के कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम हमने 3 और 9 का लिया तो 9 आया. जस्ट हमारा अब ये काम होगा कि हम इन दोनों कोफिशिएंट्स को 9 बना दें.
9 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो मिला वो 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरे इक्वेशन से 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड जॉब ये है आपका कि आपको साइन चेक करना है। हियर 9 in both the equations the coefficients of x has positive sign, that means they have like sign, so we need to subtract either the one of the equation from the other. Here we want to subtract this one part from this, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका पॉजिटिव साइन है, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन के बाद ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसका साइन -7 है तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन जब करते हैं इस इक्वेशन से इसको ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे -15 और -+2y है। इस साइन को हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, ये दोनों साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब इस नीचे वाले नंबर का साइन +2y है, इसका साइन -15 है। दैट मीन्स -15 का मैग्नीट्यूड बिगर है तो बिगर वाले का साइन यहाँ पे आएगा, रिजल्टिंग साइन नेगेटिव होगा, -13y इक्वल्स टू यहाँ पे बिगर वन नंबर भी माइनस है और स्मॉलर वन नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ भी माइनस लेगा। तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया जिसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। तो फिर हम यहाँ पे -13y इक्वल्स टू 5 करेंगे अगर एक स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में हमारा y का वैल्यू 5/-13 आ जाएगा। तो ये y का वैल्यू आ गया। जैसे ही y का वैल्यू हमें मिल गया, इस वैल्यू को हम ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस इक्वेशन पे रखिए। तो हम यहाँ पुटिंग y इक्वल्स टू -15/13 इन इक्वेशन 1, 3x -5, उसके बाद y का वैल्यू हमने पुट किया है, फिर -4 एंड फाइनली 3x। ये सारे साइंस को अगर हम उधर लेके जाएं तो +4 हो जाएगा ट्रांसपोजिशन के बाद, और ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके फिर माइनस हो जाएगा 25/13। क्लियरली देख सकते हो कि 3x इक्वल्स टू 13 को हमने एलसीएम लिया। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम 13 4 r इक्वल्स टू 52 -25, फिर आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गो 27 एंड कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ के डिवाइड होगा, जो आफ्टर कैंसिलेशन we'll get 9/13. Hence the required solutions are 9/13 and 5/-13. अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को फिर हमने कंसीडर किया है। यहाँ पे देखिए कि 2/3x plus 3/5y equals to 17 and 3/4 of x plus 2/3 of y equals to 19। हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, दैट इज x और y का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे फ्रैक्शनल मोड में है, तो बेस्ट वे है कि इसको ओरिजिनल फॉर्म में इक्वेशन का हम लोग सजा लेते हैं, दैट इज ax plus by plus c equals to 0 पे। और अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ये दिस इज द बेटर वे। हमने यहाँ क्या किया कि 3 और फ्रॉम इक्वेशन 1 कंसीडर किया। अब 3 और 5 का एलसीएम हमने 15 लिया, तो ये 10x हो जाएगा और ये 9y हो जाएगा इक्वल टू 17। फाइनली 10x plus 9y इक्वल्स टू 255 हो जाएगा, ये 15 और 17 मल्टीप्लाई करके। अब उसी तरह से दूसरे इक्वेशंस को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। इस कंसीडरेशन पे एलसीएम लेने पे 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा और फाइनली ये 9x plus 8y इक्वल्स टू 19 हो जाएगा। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू पार्ट्स 9x plus 8y इक्वल्स टू 19 into 12 equals to 228। अब हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हमें किसको एलिमिनेट करना है।
यहाँ पे इस इक्वेशन में ये दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 1 और 2 का दूसरा रूप है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 एंड 4 के हम y को एलिमिनेट करने की कोशिश किए हैं। और इस y को एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों कोफिशिएंट्स को हमको इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो 9 and 8 का एलसीएम 72 देता है। तो इसको 72 बनाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, और इसको भी 72 बनाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 8 and 2 by 9, we get these two equations. फाइनली यहाँ पे आके देखते हैं कि हमें दोनों 72 का साइन लाइक साइंस है, दैट इज दे आर पॉजिटिव हियर, एंड टू सब्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्शन वी गो हियर। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसके साइंस को चेंज करना पड़ा है, और फाइनली यहाँ पे माइनस x इक्वल्स टू -12 बच रहा है, दैट इज x इक्वल्स टू 12 हमें मिला। अब इस x इक्वल्स टू 12 को हमें फाइनली इक्वेशन 1 या 2 में पुट करना है। अब पुटिंग x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1, 2/3 इंटू x के बदले आपको 12 पुट करना है, प्लस 3/5 y इक्वल्स टू 17। Now this became a linear equation in one variable also, and to find out the value of y, we have maintained the procedure, and finally y equals to 15. That means the two solutions of these equations are x equals to 12 and y equals to 15. Clear?